As it is my first lecture, I will introduce myself to you and then we will start. See, my name is Lalita Gotikar and I was teaching for in Junjunwala College for 35 years. And at that time, I wrote books for NEET as well as for CET. Because in the beginning, you know that there was no NEET in Maharashtra. So CET was there, and on the basis of marks of CET, admission was given for medicine. So I wrote books for CET in the beginning, which were published by, I can say, Target Publication or maybe Venus Publication. Besides that, I wrote guides for 11th and 12th. Afterwards, at the end, when NEET started, I wrote a book for Target Publication. And I have worked as examiner, moderator, chief moderator for 12th standard board exam. I worked as paper setter for 12th standard exam. Besides that, I have worked as paper setter for CET exam also. For NEET exam, I have not worked as a paper setter because by that time I was retired. Because I retired in 2011. That means 10 years have passed, I retired from the college, but still I am teaching. Even in our class, I was teaching till last year, but because of lockdown now, we cannot meet. And now I have decided I will take only NEET lectures. So if you are having any doubt in 11th and 12th standard, only botany, you can ask me anytime. Your doubts are welcome. So, and don't get sick. See, if you're having any doubts, you should ask me immediately. That is the one thing. And one more point, that do not keep any work pending. जो आपको पूछना है डाउट्स इमीडिएटली पूछो. ऐसे नहीं सोचो कि चलो आज नहीं बाद में पूछेंगे. Because the number of student is very less. You are only 16 or 17. So आपको ऐसे कुछ नहीं लगना चाहिए कि मैं कैसे पूछूं. तुरंत पूछना है आपको. If I know the answer, I will tell you. Otherwise, I will tell you that I will tell you afterwards. No problem. So I hope, and now what I have decided, that I will start from the first chapter only, so that no need to remember. क्यों मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि आपको याद रखना चाहिए कि चलो मैडम ने आज फर्स्ट चैप्टर किया, बाद में कल सेकंड चैप्टर करेगी, ऐसे तो आप पढ़ के आ सकते हो. वन मोर पॉइंट दैट सीबीएसई बुक में जो है ना वो आपको याद रखना ही है, क्योंकि नीट एग्जाम इज बेस्ड ऑन सीबीएसई. तो आपके पास शायद मुझे लगता है सीबीएसई के बुक्स होंगे, है ना आपके पास सीबीएसई के बुक्स? यस मैम. हाँ, सीबीएसई के बुक्स पहले पढ़ो, बाद में अपना बुक भी पढ़ो, क्योंकि 11th पे ना मॉर्फोलॉजी वगैरह चैप्टर जो है वो अपने बुक में ज्यादा अच्छा है सीबीएसई से भी. सो अपना बुक भी पढ़ो. मॉड्यूल में जो लिखा है वो भी आपको पढ़ना है. इतना 3 चीज आप लोगों ने किया तो बहुत हो गया. मॉड्यूल, सीबीएसई एंड आवर टेक्स्ट बुक, ये सब कुछ याद रखना है आपको. और बाद में आई विल टेल यू अराउंड 95% क्वेश्चंस आर फ्रॉम सीबीएसई बुक ओनली. तो सीबीएसई बुक इतना पढ़े कि जैसे बाहर हो गया, लेकिन बाहर नहीं करना है. few questions are application type of question, and application type of question means which questions I will tell you when we will study 12th standard NEET. क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ज्यादा कुछ है ही नहीं. थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में है, लेकिन 12th में फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो वो हम लोग बाद में करेंगे जब 11th स्टैंडर्ड खत्म होगा तब. ओके, आपका हो गया होगा ना वो चैप्टर जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं. अदरवाइज एवरीथिंग इज फ्रॉम सीबीएसई बुक ओनली. सो आपको ये पहले करना है कि पहले थियरी पक्का करो 11th का और 12th का. ओके, सो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट एंड वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. देखो अभी अपने
अपना बुक जो था लिविंग वर्ल्ड का टेक्स्ट बुक में, तो वो बहुत कम लिखा था, उन्होंने अलग ही चीज लिखी थी। मीन्स ओनली दे हैव रिटन what is botanical garden, zoological park, museum, then something about biodiversity, why loss is there for biodiversity, conservation of biodiversity। बाद में अपने बुक में मैं बोल रही हूँ हर्बेरियम की ये सब चीज लिखी थी। लेकिन इनके सीबीएसई के बुक में जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज स्पीसीज, जीनस, वो हम लोगों ने हायरार्की पढ़ी थी, वो सब चीज उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में दी है। उसके बाद उन्होंने बाद में टैक्सोनॉमिकल एड्स एक्सप्लेन किए हैं कि जो हम लोगों ने पढ़े थे वो ही, तो वो थोड़ा सा ज्यादा है। सो आई थिंक दैट कैन बी मैनेज। सो वी विल स्टार्ट विथ कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स। सो आपके पास मॉड्यूल है, आप बुक निकालो। Everybody is having module? Yes. Do you have module in your hand? मैम पीडीएफ दिया है। हाँ वही जो कुछ है रे अपने हैंड में, मीन्स नॉट ऑलवेज हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है ना, है ना आपके पास? तो कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स निकालो 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास भी पीडीएफ ही है, देखो मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे वो मोबाइल से आपके साथ बात करना और ये दोनों चीज अच्छा नहीं लगता है। वो मैं देखूंगी तो मैं आप लोग मुझे देख नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि वो भी होना चाहिए, इसलिए मैंने वो यहाँ पे लिया है लैपटॉप में। ओके, सो शैल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन? मिस मुझे भेजा ही नहीं। यस सर, मुझे भी नहीं मिला है। यस अरे नहीं, सर सुनते होंगे तो भी सर क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि वो माधुरी मैडम ने भेजना चाहिए ना। 1 minute, हाँ 1 minute, I will ask sir if sir is there। शायद सर नहीं है। कितने लोगों को नहीं मिला है? मिस मुझे नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। मैम 3-4 स्टूडेंट्स। अभी क्या करूं मैं, माधुरी मैडम को फोन करूं कि भेजने के लिए? कैन यू टेल मी योर नेम्स, किनको नहीं मिला है? मिस मुझे मैम अक्षय, अक्षय और निकिता, निकिता और अंजलि, अदिति। मैम क्रिस्टन। Okay, I will just ask माधुरी मैडम to send this, okay? क्योंकि नहीं तो मुझे आपको ये भी बोलना पड़ेगा ऑप्शन, और बहुत टाइम जाएगा ना उसमें अपना, है कि नहीं? ठीक है, मैं माधुरी मैडम को फोन करती हूँ। इन द मीन टाइम यू कैन। हॅलो मॅम। हाँ बोलो मॅम, तुला सर पाठवणार आहे, त्यांना विचारा ना, सरांना सांगायला मेसेज टाका ना ग्रुप वरती। काय सांगू त्यांना? जिसको नोट्स नहीं मिला है ना, वो एमबी सर के क्लास के नंबर पे मैसेज डालो ना। पता चला आपको स्टूडेंट्स? अक्षय, निकिता। यस हाँ, Yes, तो ma'am. मैडम ने जो बोला है वो करो, मैडम ने जो आपको बोला है वो करो। मैसेज डालना है, डाल दिया? यस मैम। निकिता? यस हाँ, जिनको नहीं मिला वो मैसेज डालो, मैडम ने बोला है ना मैसेज डालो, तो मैसेज डालो। ओके, ठीक है, तब तक हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मुझे बोलो कि आप लोगों ने पढ़ाई कैसे स्टार्ट की है? मैडम जब तक पीड़ित नहीं भेजते तब तक मैं बात करती हूँ आपके साथ। कैसे करते हैं पढ़ाई? सीबीएसई का बुक पढ़ा है आपने किसी ने, फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड का? एनसीईआरटी। यस मैम, एनसीईआरटी। वही पढ़ा है ना। देखो पढ़ते Yes. समय आपको कैसे याद रखना है, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि आप पीछे आंसर जो लिखते हैं वो देख के कभी भी आंसर नहीं बोलना, क्योंकि एग्जाम के टाइम हम लोगों को आंसर नहीं देते हैं,
पीछे, नहीं तो अपने पास बुक भी नहीं रहता है, इंटरनेट भी नहीं है, गूगल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आदत खुद को नहीं डालना है। समझो आपको नहीं आता है ना, ठीक है ना, नहीं आएगा तो ऐसे टाइम में आप मॉड्यूल देखो, सीबीएसई का बुक देखो, अपना टेक्स्ट बुक देखो और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर योरसेल्फ, क्योंकि जितने बार आप वो बुक खोल के देखोगे ना, पढ़ोगे ना, उतना आपका रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं, पक्का हो जाएगा आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको नहीं आता है तो भी कुछ नहीं है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ऐसे थोड़े ही कि सब कुछ आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो पीछे देख के आंसर नहीं बोलना है ए बी सी ऐसे करके, उसके सिवा आप बुक पढ़ो, फाइंड आउट, क्योंकि उधर टॉपिक का नाम लिखा रहता है व्हाट इज लिविंग 1.1, तो 1.1 निकालो सीबीएसई और एनसीईआरटी के बुक से पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। और नहीं मिला तो हूँ मैं बोल दूंगी आपको आंसर। ऐसे स्टाइल से पढ़ाई करो, और जो पॉइंट्स बुक में नहीं है, नहीं तो मॉड्यूल में नहीं है, तो वो पॉइंट आपको नोटबुक में लिख के रखना है, क्योंकि एग्जाम को जाते समय आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपको पता चला होगा क्योंकि 12th स्टैंडर्ड चालू हो गया, तो आपको पता लगा होगा कि पोर्शन बहुत है, और वो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ करना है, तो इतना टाइम मिलता नहीं है, और एक ही दिन में एग्जाम रहती है ना, सब कुछ एक दिन में आपको, कोई कोई बच्चों का ऐसा रहता है कि एग्जाम के पहले दिन सब पढ़ना है, और सब पढ़ना है तो कैसे हो जाएगा 11th और 12th का तीनों सब्जेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप नोटबुक में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो नोट डाउन करो, ठीक है। तो नहीं, और अपने टेक्स्ट बुक में भी, अपने टेक्स्ट बुक में मीन्स एनसीईआरटी और अपना खुद का टेक्स्ट बुक में तो मॉड्यूल जो कुछ है वो, उसमें भी जो क्वेश्चन बार बार पूछे उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि आप इजीली एमसीक्यू क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका आंसर एक वर्ड में, नहीं तो 2-3 वर्ड में आता है, वैसे स्टाइल के क्वेश्चंस जनरली पूछते हैं, ठीक है। सो शैल आई स्टार्ट विद दिस नाउ। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीडीएफ मिला सबको या नहीं मिला है? पीडीएफ मिला? No, miss. नो मैम। नो, ओके। जब तक नहीं मिलता है ना, तो हम लोग और कुछ चीज करेंगे। हाँ, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, Yes. यस मैम। यस। पूरा हो गया है, Yes. Yes. हाँ मैम, पूरा हो गया। टेस्ट भी हो गई। No. नो। हाँ, ठीक ठीक है, लेकिन आपको कुछ तो आता होगा ना? नहीं तो बुक में देख के तो आप बोल सकते हो ना मुझे कुछ आंसर्स, तो मैं Yes. आप ऐसे करो, अभी जब तक आपको पीडीएफ नहीं मिलता है, वैसे भी 12th स्टैंडर्ड का नीट भी मुझे लेना है, तो मैं क्या करती हूँ, अभी थोड़े क्वेश्चंस था मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, मेरे पीछे बोर्ड है, देखो आप देख सकते हो। मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगी, क्योंकि ऑप्शन लिखे तो मुझे बहुत कम क्वेश्चंस लिखने को मिलेंगे, सो आई विल राइट ओनली क्वेश्चंस एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स, तब तक पीडीएफ आ जाएगा, ओके। क्योंकि वो अभी अभी चैप्टर हो गए, तो आपको कुछ तो याद होगा, ये लिविंग वर्ड से कुछ याद नहीं होगा, तो उससे अच्छा मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट से कुछ क्वेश्चन लिख दूं बोर्ड पे, आप लिख लेते हो? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. ओके ओके, तब तक पीडीएफ आ जाएगा आपको। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप अपना टेक्स्ट बुक हाथ में रखो, टेक्स्ट बुक देख के करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी लिखे तो देख सकते हो ना, शाइनिंग नहीं हो रहा है बोर्ड?
I hope you can see the board, isn't it? आपको दिखाई देता है ना? दिखाई देता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो क्वेश्चन लिख के ले लो. इजी क्वेश्चन डाल रही हूँ, डिफिकल्ट नहीं. डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में, इजी पहले आने दो. चलो 10 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने. जो आप देख नहीं सकते हो मुझे पूछो, मैं बोल देती हूँ क्या लिखा है. ये 10 क्वेश्चन होते होते मुझे लगता है आपका पीडीएफ मिल जाएगा. लिख के ले रहे हो, डायरेक्टली आंसर बोल रहे हो? यस स्टूडेंट्स. यस निकिता, अक्षय. Yes, ma'am. हम note Yes, down ma'am. करते हैं. नहीं देखो, ऐसे जरूरत नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए. जो जिसको जो आंसर आता है ना बोल दो, बीच में होगा तो भी चलेगा. मैडम क्वेश्चन नंबर 5 ये आंसर. मैडम मुझे 8 नंबर का आता है. जो आता है Ma'am, वो बोलो. ऐसे नहीं कि ma'am, एक ही बोलती. question Miss number one, one wind का and water. wind water. Wind and water. Then water. Okay. First Wind, one is water correct. first. First one is correct. Wind and water. तो वो हो गया. चलो आगे का जिसको जो आता है वो बोलो. मैंने पहले वाले क्या लिख दिया? विंड एंड वाटर. और जो कुछ आएगा वो बोलो. ऐसे नहीं कि नंबर 2 का ही ढूंढना है. जो कुछ मिलेगा वो बोलो. Ma'am, question number 3 का. Yes. Ma'am, tapetum is the innermost layer and it provides the nutrition to the anther walls. Yes. Function of tapetum is, you can say, nutrition. Correct. Correct. Function of tapetum is nutrition. Provide nutrition to the developing pollen grain. लेकिन न्यूट्रिशन ऐसा ही ऑप्शन रहता है बुक अपने इसमें. Yes. तो मैं लिखती हूँ, मैं मार्कर पेन में शाई डाल रही हूँ.
तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, फंक्शन ऑफ टैपेटम इज न्यूट्रिशन। यानी आंसर भी आपके पास रहेंगे ये। मिस सेकंड का सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। क्या नाम बोला? क्लिस्टोगैमी इज ऑब्जर्व्ड इन पॉलिनेशन। नहीं, मुझे प्लांट का नाम चाहिए, प्लांट का नाम। ओके। You know what is clistogamy? Clistogamy Viola. Viola, correct. Correct. Viola. Commelina. Yes, correct. Viola, Commelina, Portulaca, Oxalis. 4 नाम है। अपने बुक में कितने दिए वो मुझे पता नहीं, लेकिन 3 ऑप्शन दे देंगे और उसके नीचे लिखेंगे all the 3. So 4 examples are there: Commelina, Portulaca, Viola and Oxalis. और क्लिस्टोगैमी क्या है आपको पता है? क्लिस्टोगैमी मीन्स फ्लावर्स आर अंडरग्राउंड एंड दे नेवर ओपन। और फ्लावर्स ओपन नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा कि नहीं? Yes. हाँ, क्योंकि पोलैंड्रल्स तो वहीं पे स्टिग्मा पे ही गिर जाएंगे, क्योंकि वो बाहर जाने को चांस ही नहीं, बिकॉज फ्लावर्स आर क्लोज्ड। सो क्लिस्टोगैमी इज ऑब्जर्व्ड इन, मैं नाम लिख देती हूँ। अपने बुक में चारों नाम है या नहीं है? चारों नाम मैम चारों नहीं है, 2 ही है बस। 2 ही है। तो सीबीएसई के बुक में है या उधर भी नहीं है? मैं लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं। क्लिस्टोगैमी इज ऑब्जर्व्ड इन, ऊपर लिखती हूँ। कॉमेलिना तो जनरली वो लिखते ही है, कॉमेलिना, वायोला, पोर्चुलाका, POR and last one is Oxalis. 4 नाम है। And मैम this एनसीईआरटी में है is एग्जांपल्स। जिसने मुझे फंक्शन ऑफ टैपेटम बताया है, ढूंढ लो, वहीं पे एंडोथीशियम का फंक्शन है, वही टॉपिक में। ये सभी कौन सा? सब लोग ढूंढ रहे हैं शायद आंसर्स, है ना? मिस एम्ब्रियोनिक सैक का। हाँ, एम्ब्रियो सैक, हाँ। मोनोस्पोरिक। नहीं, पहले वो तो नहीं पूछा है। व्हाट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड एज, उसका दूसरा नाम क्या है आपको पता है? वो फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल। वेरी गुड, यस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। वेरी गुड, मैं लिख देती हूँ उधर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। बाकी लोग आंसर लिख के ले लो, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। जो पूछ रहे क्वेश्चन वही मैंने लिखे हैं, सिर्फ मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, क्योंकि ऑप्शन लिखते बैठू तो अपना बोर्ड का 3-4 ही क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा है। चलो अभी और। Miss 10th one, if androecium matches before gynoecium, it is called protogyny. फिर से पढ़ो, एंड्रोशियम मैच्योर्स बिफोर गायनेशियम, तो क्या है? देखो, Protogyny. प्रोटोगेनी, प्रोटोगेनी, प्रोटेंड्री है मैम, हाँ प्रोटेंड्री। हाँ, Protandry, sorry, miss. हाँ, बराबर है, बराबर है, बराबर है।
और गाइनेशियम पहले मैच्योर होता होगा तो फिर क्या बोलेंगे उसको? प्रोटोगाइनी. यस, वेरी गुड. और एग्जाम्पल भी याद रखो. प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल क्या है? क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछते हैं. प्रोटोगाइनी एग्जाम्पल अपने बुक में दिया है कि नहीं? क्या है? Yes, sunflower. 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 और प्रोटोगाइनी के लिए App. Gloriosa. Gloriosa. ग्लोरियोसा. यस, तो वो नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि वो भी पूछते हैं कभी कभी. Miss egg का Miss egg and egg synergies. apparatus, excel Egg and and haploid synergies. synergid cell. यस, वेरी गुड. एक सेल, उसका दूसरा नाम है फीमेल गैमेट, एंड हेल्प सेल्स और सिनर्जिड्स. कुछ भी ऑप्शन हो सकता है. हेल्प सेल लिखेंगे, सिनर्जिड लिखेंगे, एग लिखेंगे, फीमेल गैमेट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, लेकिन दैट इज अवर आंसर. तो अभी मैं वो नहीं लिखती हूँ. एक apparatus कंसिस्ट ऑफ एग और फीमेल गैमेट एंड सिनर्जिड्स और हेल्प सेल्स. वो हो गया. अभी 9th वाला बाकी है, 7th वाला बाकी है, 6th and 4th. वो हो गए तो और लिखूंगी. तब तक PDF आ गया है क्या? देखो, मैडम ने आपको बोला है ना भेज देती हूँ. नहीं आया. नहीं आया है अभी तक. ठीक है, नहीं. ठीक है. मैडम ने बोला है आपको अभी भेज दूंगी करके. क्या बोल रही थी मैडम? मुझे सुनाई नहीं दिया. सर को मैसेज करने. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है. चलो अभी 4, 6, 7 और 9. नाइन्थ वाला शायद नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब मैम कुछ. 9th one का 41 है क्या? 9th one. यस. यस, किसने आंसर दिया? बराबर है. यस मैम, क्योंकि वन मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को 4 पोलन ग्रेन्स का प्रोड्यूस Yes. करते हैं, तो 164 इट इज 164 डिवाइडेड बाय 4. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी लोगों को समझ गया? इसका आंसर उसने दिया है. देखो, टू प्रोड्यूस 164 पोलन ग्रेन्स, डैश नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड. तो आपको पता है कि सिंगल 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड गिव राइज टू 4 पोलन ग्रेन. तो 4 पोलन ग्रेन होने के लिए 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए. तो 164 को कितना? तो 164 डिवाइडेड बाय 4. तो आंसर है इसका 41. सबको समझ गया? Yes. Yes. वेरी गुड. ये आंसर किसने दिया? वेरी गुड. चलो, और बाकी ये भी हो Miss गया. 6th और 7th का ये हो शाइन. यस मैम, वो समझ में नहीं आ रहा क्या है, मतलब 6 का फर्स्ट वर्ड. कौन सा बोल रहे हो, 6 या 7? दोनों मिस. दोनों. हाँ, ठीक है. इसका बोलो 6 का क्या है? मिस वो शाइन हो रहा है, नहीं दिख रहा. It's not- इनकीगेला. हाँ, तो मैं बोलती हूँ इनकीगेला, KIGELLA. इनकीगेला डैश इज द एजेंट फॉर पॉलिनेशन. क्या होगा आंसर? इनकीगेला, KIGELLA. ये क्वेश्चन बोर्ड में भी एक बार आया था. इनकीगेला डैश इज द एजेंट फॉर पॉलिनेशन. क्वेश्चन नंबर 6. बाद में 7 बोलती हूँ. सेवंथ वाला दिख रहा है ना? No, miss. Enzyme of pollen grain contains the hardest material. Enzyme of pollen grain contains hardest material. उसका नाम चाहिए मुझे. और मिस वो material. Kigela हाँ. का बैट. Yes, very good. In Kigela pinnata, bat is the agent for pollination. ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था, याद रखो. बाद में 7th one, enzyme of pollen grain contains hardest material. Hardest Sporopollenin. material का वर्ड होगा भी नहीं शायद. हाँ, बोलो. Sporopollenin. Sporopollenin. Yes, very good. Sporopollenin. Do you know this sporopollenin, as it is hardest material? The pollen grains, they do not get decomposed, and that is why they can be preserved as fossils.
इसलिए हम लोगों को फॉसिल फॉर्म में पोलन ग्रेन्स मिलते हैं. एंड डू यू नो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन लिख के ले लो. स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पैलिनोलॉजी. पैलिनोलॉजी. Study of pollen grain is called as palynology. Study of fungus, do you know what it is called as? Study of fungus. Mycology. Yes, it is called as mycology, correct. And study of flowers. Study Botany. of, huh? Botany. Study of flowers. Anthology. Study of flowers is called as anthology. ANTHOLOGY. Anthology, study of flowers. Or study of fruits, pomology. POMO. Pomology, study of fruits is called as pomology. ऐसे स्टाइल के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लिख के रखो. Study of fruits is called as pomology. हाँ, अभी कौन सा रह गया अपना क्वेश्चन? एक ही, फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम बोल दो, वो तो बहुत इजी है. Protection of pollen grain. नो, नॉट एपिडर्मिस का फंक्शन प्रोटेक्शन है. Production of Production of pollen grain in anther. किसका फंक्शन बोल रहे हैं? एंडोथीशियम का? नहीं, एंडोथीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर dehiscence of the anther, dehiscence of the pollen grain. Sorry, there is not pollen grain, pollen sac. Dehiscence of the pollen sac is the function of endothecium. देखो मिलेगा आपको बुक में. तो मैं और आगे के क्वेश्चन लिख दूं? Yes, ma'am. यही चैप्टर करेंगे ना, क्योंकि लिविंग वर्ड आपको मिला ही नहीं, तो मैं पूरा का पूरा ये बोलते बैठू आपको ऑप्शन, तो सॉल्व करने को टाइम जाएगा ना ज्यादा. तो मुझे लगता है यही चैप्टर में आगे का कर देती हूँ, चलेगा ना? Yes. हाँ, क्योंकि वैसे भी अब तक तुम्हारा अभी हो गया टेस्ट. मैम हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पीडीएफ भेजना. अरे लोकोमोशन मूवमेंट जूलॉजी का पार्ट है, मुझे नहीं आता है वो, समझ गए ना? जूलॉजी पार्ट मुझे ऐसे बाहर नहीं है, मुझे बुक देखना पड़ता है. ये तो मैं विदाउट बुक ऑल्सो आई कैन एक्सप्लेन एनीथिंग, लेकिन जूलॉजी में बुक के सिवा नहीं कर सकती. चलो तो और आगे का लिख देती हूँ. 10 क्वेश्चन हो गया, आपने लिख के ले लिए? Yes, ma'am. 8 question. Yes. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दो, एक 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफिकल्ट डाल दे. These questions we can say they are memory based. आपको बुक समझा होगा, आपने याद किया होगा तो ये आएगा. लेकिन अभी एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन डाल देती हूँ, यानी यू हैव टू यूज योर नॉलेज व्हाट यू हैव स्टडीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. अब देख सकते हो क्वेश्चन.
ये क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, आपको जो कुछ आंसर मिलेगा वो पहले बोल दो, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इतने 3 चीज एक साथ नहीं पूछते, सिर्फ एक ही पूछ रहे, लेकिन मैंने तीनों डाल दिए, पोलन ग्रेन, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। एक ही कोई पूछेंगे, नहीं तो शायद कभी कभी 3 भी साथ साथ में पूछते। सो ट्राई टू फाइंड आउट। I hope you know what is diploid, what is triploid and what is haploid. ये पता है ना आपको? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो अभी करो। जिसको जो मिलेगा, मैं नीचे लिख के रखती हूँ, तीनों के साथ में उत्तर देना है ऐसे कुछ नहीं, मैं लिख के रखती हूँ, अलग अलग बोले तो भी चलेगा। पोलन ग्रेन का कितना है वो बोलो, मैं सामने लिखूंगी उसकी। जाइगोट का बोलो, वो इधर लिखूंगी, और एंडोस्पर्म यहाँ पे लिख देती हूँ। जिसको जो आएगा वो बोलो, थोड़ा सोचो और बाद में बोलो। रूट सेल कैसे रहती है वो मुझे पहले बोलो, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? मैम डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ना, करेक्ट, डिप्लॉइड। तो जिसने आंसर दिया वो अभी सोचो, आगे आगे का सोचो और आएगा आपको। डिप्लॉइड है ये मालूम है तो सब कुछ है। डिप्लॉइड है ये आंसर, अभी किसने दिया? बराबर है, किसने दिया ये नाम तो बोलो मुझे। मॅम अक्षय. अक्षय. अक्षय म्हणजे तुला सारखे प्रश्न विचारणार ना बघता। चलो बोलो, वेरी गुड, रूट इज डिप्लॉइड। तो अभी पोलन ग्रेन कैसा है? मैम वो हैप्लॉइड रहते हैं पोलन ग्रेन्स. Haploid। तो कितने तो क्रोमोसोम रहेंगे? 8 होगा, 8 होगा. यस, वेरी गुड, पोलन ग्रेन 8। अभी जाइगोट बोलो। डिप्लॉयड होते हैं. हाँ, 16 होगा, 16। yes, yes, very good. Pollen grain 8, zygote 16. तो एंडोस्पर्म 24 होगा. 24 ट्रिप्लॉइड होता है वो. yes, very good, very good. चलो लिख के ले लो, जिनको समझानी है वो मुझे पूछो। सबको समझा है ये क्या आंसर कैसे आ गया इससे? सबको समझा है क्या? Yes. हाँ, तो पहले ना एक चीज लिख के रखो, मैं जो बोलती हूँ वो, इससे आपको तुरंत समझेगा। नोटबुक में लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट करके। बोलू? यस मैम. Yes. हाँ, इन एंजियोस्पर्म प्लांट following parts are haploid. Haploid, only one set. Haploid means only one set. कौन से है? नंबर 1 पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? पोलन ग्रेन को और क्या हम बोलते हैं? Megaspore. माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। नंबर 2 मेल गैमेट। Then third one megaspore. Fourth one female gamete or egg. Female gamete or egg. Fifth one antipodal cells. Antipodal cells. Sixth one help cells or synergids. Help cells or synergids. These are haploid. Again, I am repeating. In angiosperm plant, following parts are haploid. कौन से मैंने बोल दिए? 6 parts है. First one is pollen grain or microspore. Then male gamete.
जिसका कुछ बचा होगा लिखने को उनके लिए रिवाइज कर रही हूँ. फर्स्ट वन इज माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, सेकंड वन इज मेल गैमेट, थर्ड वन इज मेगास्पोर, फोर्थ वन इज egg or female gamete, then synergids or helip cells, and last one is antipodal cells. These 6 are haploid. अभी उसके नीचे following parts are triploid. Following parts are triploid. Triploid कौन है? PEN. PEN means primary endosperm nucleus. PEN and endosperm. PEN and endosperm. These are triploid. और बाकी जो कुछ है सब कुछ डिप्लॉइड. उसके नीचे लिखो रिमेनिंग ऑल पार्ट्स आर डिप्लॉइड. यानी आपको पता भी नहीं होगा तो भी वो डिप्लॉइड है. रिमेनिंग ऑल पार्ट्स आर डिप्लॉइड. गॉट इट? हो गया लिख के? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो अभी और डिफिकल्ट क्वेश्चन डालू. ये तो आपको आ गया तो और एक डिफिकल्ट डालू. Yes. Yes, ma'am. डाल देती हूँ. पहले जाइगोट का बोलो, बाद में मैं और उसमें और एक पूछने वाली हूँ. टेट्राप्लॉइड मतलब है 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. female plant is tetraploid and it is crossed with diploid male plant. What will be the ploidy level of zygote? Ploidy level means कितने सेट्स होंगे जाइगोट में? 3. यस, वेरी गुड. किसने आंसर दिया? Sharon. हाँ, तो क्यों बोलो मुझे आंसर बराबर है. मिस टेट्राप्लॉइड मतलब उसका हाफ हो जाएगा तो 2n हो जाएगा और Yes. डिप्लॉइड में उसका हाफ n हो जाएगा तो दोनों Yes. फ्यूज होके वेरी ट्रिप्लॉइड. गुड, वेरी गुड. सबको समझा ये आंसर? Yes, ma'am. हाँ. Yes, तो ma'am. अभी शेरॉन मुझे एंडोस्पर्म का बोलो. ये आंसर बराबर है आपका 3n. करेक्ट. तो मैं इधर लिख के देती हूँ 3n और इसमें ऐड करती हूँ एंड एंडोस्पर्म. तो अभी एंडोस्पर्म का भी बोलो. यू विल गेट इट. थोड़ा सोचो, मिलेगा. 5. यस, वेरी गुड. अभी वो भी बोलो क्यों बराबर मिस है? मिस फीमेल का टेट्राप्लॉइड वैसे ही रह जाएगा और Very good. मेल का हाफ हो जाएगा तो 5n. यस, क्यों वैसे ही रह जाएगा? बराबर है, लेकिन क्यों? आंसर तो बोलो. सबको समझना चाहिए ना. जिसको नहीं समझा उसको मिस समझना चाहिए. उसमें मियोसिस नहीं हो. मियोसिस नहीं होता, ऐसे नहीं है. हाउ सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म? सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई. तो पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, सो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डिप्लॉइड होता है. तो एंडोस्पर्म का पूछा है ना, तो हमेशा जिन लोगों को समझा नहीं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको नहीं समझा उनको ऐसे एंडोस्पर्म का पूछेंगे ना तो फीमेल प्लांट में जितना प्लॉइडी लेवल है वो ही लेने का और मेल प्लांट का आधा कर देने का. तो इसने जो आंसर बोला है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर इज 5n. 5n. अभी जिसने मुझे आंसर नहीं दिया है उनको देना है. ये लिख के हो गया तो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देती हूँ. ये हो गया लिख के? यस. Yes, सब लोगों ma'am. ने आंसर लिखा है?
अभी मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ और मुझे आंसर दो। मैं यहाँ फीमेल की जगह वो मेल कर देती हूँ। हाँ, तो टेट्राप्लॉइड मेल एंड डिप्लॉइड फीमेल, यहाँ फीमेल लिख देती हूँ। तो अभी चेंज होगा क्या आंसर में अपने? क्या Yes. कैसे होगा और एंडोस्पर्म कैसे होगा? थोड़ा चेंज कर दिया मेल और फीमेल में। मिस जाइगोट का सेम रह जाएगा, हाँ बराबर, जाइगोट का सेम एंडोस्पर्म का चेंज होगा। हाँ, एंडोस्पर्म चेंज हो जाएगा। एंडोस्पर्म क्या होगा फिर? बराबर बोल रही है, जाइगोट तो उतना ही 3n हो रहेगा। जाएगा, 4n हो जाएगा मिस, 4n। यस यस यस, वेरी गुड। एंडोस्पर्म 4n हो जाएगा, जाइगोट तो 3n ही रहेगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट ही है, इसलिए कुछ फर्क नहीं है। लेकिन एंडोस्पर्म 4n हो जाएगा, क्यों? तो फीमेल प्लांट इज डिप्लॉइड। तो मैंने बोला है आपको एंडोस्पर्म का काउंट करना है, तो फीमेल प्लांट में जितना है वो ही लेने का है, और मेल प्लांट का आधा। तो अभी मेल प्लांट यहाँ टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड यानी 4 सेट्स, तो मेल गैमेट विल बी डिप्लॉइड हैविंग 2 सेट्स, और फीमेल का उतना ही लेना है, तो 2 + 2 4n इज अवर आंसर। एवरीबडी हैज फॉलोड दिस? Yes, ma'am. Yes. Surely, because 16 students are there, मुझे 2-3 लोगों का ही आवाज आ रहा है यस यस करके। सबको समझे? 53 है। मैं 53 हो गया अभी। नहीं, अपने स्टूडेंट्स तो 16 है ना शायद यहाँ पे। 53। 54 है। बाप रे, 54 इतने बढ़ गए हैं, मुझे लगा कि 16 ही है। अच्छा, तो लेकिन सबको समझा है क्या? क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती, इसलिए मुझे पता नहीं कि समझा है कि नहीं। नहीं समझा है तो पूछो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, या मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया और मैंने आगे चली गई मैं और आगे क्वेश्चन। तो सबको समझा है ना? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay, then shall I give you another question now? Yes, ma'am. Yes. अभी और एक डिफिकल्टी डाल देती हूँ, पहले डिफिकल्टी करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। चलो और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वो देखो आता है क्या। आप लोग ये शायद लिख के ले रहे हो ना क्वेश्चंस? Yes, Yes. yes, ma'am. हाँ, क्योंकि नहीं तो फोटो तो ले लो, कुछ तो करो, क्योंकि ना आज का दिन ऐसे वेस्ट गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1.5 आवर आई डोंट वांट दैट यू शुड लूज, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, तो कुछ तो उसमें होना चाहिए, सिर्फ बातें करके कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चंस में बाद में जब ये चैप्टर ले लेगी तो शायद नहीं भी ले लेगी, और कोई और टीचर ने लिया तो ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं दे देंगे शायद वो, क्योंकि मॉड्यूल में जो नहीं है वो जनरली टीचर्स नहीं देते। लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे जो आ रहा है वो मैंने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकता है ना, वो ही मेरिट में आता है। सिंपल चीज है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सबको आता है, एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसको ही एडमिशन मिलेगा। तो नाउ नेक्स्ट वन, मैं नंबर तो कुछ भी डाल रही हूँ, जो मुझे लगता है वो आपका जो है वो लिखो। क्वेश्चन देखा है आपने? थोड़ा सोचो, चाहिए तो बुक को रिफर करो और बाद में आंसर बोलो।
You can refer to your textbook, no problem. Hello, ma'am. Hello, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, one meiosis and two mitosis. One meiosis and two mitosis. Correct. Correct. Akshay, you have given me answer. Yes, ma'am. तो explain कर पाओगे सबको? Yes, ma'am. Go Ma'am, to- in first meiotic division in meiosis, the microspore mother cell, that is MCC, gives rise to 4 pollen grains or 4 microspores. Correct. Correct. And in first mitosis, the nucleus of the microspore mother cell divides and give rise to vegetative cell and generative cell. So that is one mitosis. And then during pollination, second mitosis happens and generative give rise to 2 non-motile pollen grains, male gametes. Male gametes. Correct. सबको समझा? Meiosis कैसे? एक बार microspore mother cell undergoes meiosis, give rise to 4 microspores. तो meiosis एक बार हो गया. बाद में 2 बार mitosis कैसे? पहले ही वो जो माइक्रो पोलन ग्रेन है उसमें माइटोसिस होता है और 2 cell condition is formed. Which are the 2 cells? Generative cell and वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल को बॉडी सेल भी बोलते हैं. और बाद में आफ्टर पॉलिनेशन द जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड 2 non-motile male gametes are formed. बराबर? तो फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल ऐसे पूछा है तो 1 meiosis and 2 mitosis, that is our answer. ओके. अभी समझो, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया. इसका आंसर लिख के ले लिया. यस Yes, ma'am. अभी मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया और मैंने फ्रॉम माइक्रोस्कोप ऐसे पूछा है. तो क्या आंसर होगा? जो कुछ आंसर है वो बोल देने का. आंसर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा ना. अभी मियोसिस होगा क्या? या नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं बोलने का, ऐसे कुछ नहीं है. यस अक्षय, मियोसिस विल हैपन. नहीं होगा नहीं meiosis. होगा तो 0 मियोसिस. और माइटोसिस कितना? 0 मियोसिस एंड माइटोसिस कितने बार?
बोल दिया है तुमने पहले ही, कितने बार? Mitosis दो ही हाँ? होगा mitosis. Two दो ही mitosis. बराबर है, माइक्रोस्पोर के बाद में 2 बार माइटोसिस होता है, तो ये आंसर हो गया। लिख के ले लो, फिर और एक चेंज करने वाली हूँ यही क्वेश्चन में। मीन्स क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो जाता है, वो मुझे दिखाना है। तो अभी 0 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, दैट इज आवर आंसर। ये लिख के हो गया तो मुझे बोलो, फिर मैं ये इसमें मॉडिफिकेशन करके थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन डाल दूंगी। ये हो गया ना लिख के, तो बोलो। हाँ, Yes, ma'am. हो गया। Yes, ma'am. या किसने तो मैसेज डाला था, मैंने देखा नहीं, क्या डाला था? यस अनीत, ये किसने तो मैसेज डाला था? ओके, मैं अभी दूसरा डाल देती हूँ क्वेश्चन। Yes. हाँ, Yes. I will change the question slightly. हाँ, how many times meiosis and mitosis will take place respectively to produce mature male gametophyte after pollination? थोड़ा ही चेंज कर दिया, तो अभी आंसर क्या होगा? यस, इजी है। Ma'am, meiosis तो होगा नहीं. बराबर, 0 मियोसिस। Zero. और mitosis एक ही होगा. वेरी गुड, 0 meiosis and 1 mitosis. Why? Because meiosis होने की है ही नहीं, क्योंकि माइक्रोस्पोर का pollination हो गया है, तो meiosis नहीं होगा। और at the time of pollination, the pollen grain is already 2-celled, तो एक बार mitosis हो चुका है। और afterwards germination will take place and generative cell will divide by mitosis and 2 non-motile male gametes are formed. तो एक बारी माइटोसिस होगा। तो वही क्वेश्चन देखो चेंज करके मैंने 3 क्वेश्चन बना, तो ये थर्ड वन क्वेश्चन, इसका आंसर लिख के ले लो, फिर और एक क्वेश्चन अलग क्वेश्चन डाल देती हूँ थोड़ा। ये लिख के ले लो आंसर, फिर और एक क्वेश्चन। हो गया कि बोलो कि फिर मैं और एक लिखती हूँ? Yes. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी फीमेल गैमेटोफाइट के लिए करेंगे। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, आप आंसर ढूंढ लो।
आंसर मिल hello. गया? हाँ आंसर मिला कि तो बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, एक मियोसिस होगा, एक मियोसिस 3 हाँ। mitosis. और 3 माइटोसिस। वेरी गुड। अभी कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं करूँ या आप करते हो कोई? वन मियोसिस 3 माइटोसिस। कैसे? देखो 1 मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म। तो मेगास्पोर फॉर्म होने की एक बार मियोसिस होती, बाद में आपको पता है दैट मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोसिस 3 times एंड 8 न्यूक्लिया आर फॉर्म। पहले बार हो गया माइटोसिस तो 2 न्यूक्लिया बन गए, दूसरे बार माइटोसिस हो गया तो 4 न्यूक्लिया बन गए, तीसरे बार हो गया तो 8 न्यूक्लिया बन गए। यू नो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट। तो 3 बार Yes. माइटोसिस होता है, एक बार मियोसिस 3 बार माइटोसिस। और मैंने चेंज कर दिया, फ्रॉम मेगास्पोर लिखा तो भी आपको पता है मेगास्पोर मदर सेल के बदले सिर्फ मेगास्पोर लिखा है तो क्या होगा? तो 0 मियोसिस होगा। 0 meiosis 3 mitosis. बरोबर बरोबर, Mitosis. याद रखो। हाँ 0 मियोसिस 3 माइटोसिस। अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि कोई लोगों को ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते होंगे, तो फिर से एक बार सिंपल क्वेश्चंस लिख देती हूँ और बाद में फिर से टाइम मिले तो फिर से ऐसे स्टाइल के क्वेश्चन। तो अभी सिंपल क्वेश्चन सब ये लिख के लिया है ना आपने? Yes, ma'am. चलो, अभी सिंपल क्वेश्चंस थोड़ा। यहाँ पे शायद मुझे लगता है शाइनिंग है ना यहाँ पे, Yes. तो Yes. यहाँ पे मुझे लिखना नहीं है, ठीक है? मैं ऊपर लिखती हूँ क्वेश्चन 1।
चलो 8 ही लिख देती हूँ, यहाँ पे इतना ही हो गया, और नहीं लिख सकती, जगह नहीं है। इस फर्स्ट का 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, ओके करेक्ट। सेकंड का नावासिन, Navasin. थर्ड का लिलियम एंड फ्रिटिलारिया. 1 minute. 8 nucleated 7 cell embryo sac. Is there any name for this embryo sac? आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो पूछते हैं सीबीएसई में, सीबीएसई नहीं, नीट में। उसका नाम क्या है वो embryo sac का? If you don't know, I will tell you. This typical embryo sac is called as polygonum type. Polygonum type. Polygonum type of embryo sac. क्यों? क्योंकि वो पॉलीगोनम प्लांट में पहले बार ऑब्जर्व किया, इसलिए उसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डैश न्यूक्लियर डैश सेल्स आर प्रेजेंट, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए नाम, इसलिए मैंने वो लिख दिया। हाँ, सेकंड वन किसने बोला है मुझे? नावासिन, Navasin. HD नावासिन। स्पेलिंग आपको पता है ना, बुक में है अपने, HD नावासिन, NAWASCHRN, नावासिन। जिनको नहीं पता है वो निकालो डबल फर्टिलाइजेशन बुक में से और वहां स्पेलिंग देखो। सेकंड वन भी हो गया, अभी तीसरा लिलियम एंड फ्रिटिलारिया. करेक्ट, वही लाइन में, वही सेंटेंस में लिखा है, HD नावासिन ऑब्जर्व डबल फर्टिलाइजेशन इन लिलियम एंड फ्रिटिलारिया, वो भी हो गया, तीसरा वाला भी हो गया। चलो आप जिनको नहीं समझा वो आप बुक में देख के लिखोगे ना स्पेलिंग, या लिखूं मैं? चाहिए तो लिखती हूँ। आगे के जो आता है वो बोलो। हाँ, अभी कौन सा आता है? Hello, ma'am. हाँ बोलो बोलो Ma'am, बोलो। seventh question का filiform apparatus है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फिलिफॉर्म apparatus। करेक्ट है। Ma'am, हाँ
8th क्वेश्चन का इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स फ्लावर्स आर विदाउट फ्रेग्रेंस. वो भी करेक्ट है, लेकिन मुझे विंड पॉलिनेटेड नहीं चाहिए. बराबर है, विंड पॉलिनेटेड. ऑर्निथोफिलस हाँ, विंड नहीं तो ऑर्निथोफिलस क्या क्या बोल दिया? और मिस ऑर्निथोफिलस हाँ, प्लांट्स. ऑर्निथोफिलस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो मेरा ना एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम करना रॉन्ग हो गया. तो विंड भी करेक्ट है एंड बर्ड भी करेक्ट है. विंड एंड बर्ड. In wind and bird pollinated plants flowers are without fragrance. बराबर है. अभी क्या बचा? वो ऊपर का 3. क्योंकि नीचे ऑप्शन देते तो विंड का नाम नहीं लिखेंगे, ऐसे है. तो ऑप्शन में नहीं लिख रही हूँ ना, इसलिए ऐसे हो गया. बराबर है. अभी 3 क्वेश्चन रह गए. चलो, नहीं मिल रहा है आंसर. सिक्स के लिए ऑप्शन बोल लेती हूँ चाहिए तो. क्वेश्चन नंबर 6, एंजियोस्पर्म प्लांट प्रोड्यूस. ऑप्शन 1 2 3 4. 1 type of spore, 2 types of spore, 3 types of spore, 4 types of spore. 1 2 3 4 ऑप्शन है. बोलो क्या होगा? 2 type of spores. 2 type of spores. कौन से 2 types? बराबर है. Microspore and megaspore. Yes, and that is why it is called as. Do you know what it is called as? See, एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो. हाँ, एंजियोस्पर्म प्लांट प्रोड्यूस 2 types of spore. Answer is correct. Which are the 2 types of spores? Microspores and megaspore. लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकते. एंजियोस्पर्म प्लांट इज. एंजियोस्पर्म प्लांट इज नहीं तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर. फर्स्ट ऑप्शन होमोस्पोरस. सेकंड ऑप्शन हेटेरोस्पोरस. थर्ड ऑप्शन आइदर होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस. एंड चौथा वाला नन फ्रॉम अबव. तो क्या होगा आंसर? होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, आइदर होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, नन फ्रॉम अबव. मैम हेटेरोस्पोरस. करेक्ट. ये वर्ड कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेटेरोस्पोरी मीन्स 2 types of spores and होमोस्पोरी मीन्स 1 type of spore. जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में भी हम लोगों को हेटेरोस्पोरी मिलती है. टेरिडोफाइटा तक होमोस्पोरी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस, एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. तो वो मालूम होना चाहिए. तो आपने यहाँ लिखा है ना, एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस 2 types of spores. उसके आगे चाहिए तो लिख के रखो हेटेरोस्पोरस प्लांट, तो आपको ध्यान में रहेगा. अभी 2 क्वेश्चन बचे. उसका आंसर बोल दो, फिर और एक क्वेश्चन डाल देती हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट वाला. मिस ये 5th वन का एग्जांपल चाहिए. हाँ, एग्जाम्पल चाहिए. बराबर. लेमन. लेमन चलेगा. लेमन नहीं तो सिट्रस, ऐसा कुछ आएगा. बराबर है. यस. वेरी गुड. लेमन नहीं तो सिट्रस. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लेमन नहीं तो सिट्रस लिखा होगा. अभी एक ही बचा है. उसके बाद में और एक थोड़ा डिफिकल्ट डालू. अभी ये सिंपल डिफिकल्ट डाल देती हूँ ना थोड़ा.
क्योंकि समझो ये मैंने नहीं लिया चैप्टर आपका नीट का, तो वो मेरा रह जाएगा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मैं वो भी बोल देती हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपको बुक कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके आंसर तो मैंने पीछे दिए नहीं है, आपको ढूंढना है, तो आपको पता चलेगा कि अभी आपको कैसे ढूंढना पड़ता है। मैं थोड़ा हिंट देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ना, वो जो एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस, वो सब दिया है ना कैरेक्टर्स, उसमें मिलेगा ये नंबर 4 का आंसर। कैरेक्टर्स दिए है ना, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, चिरैप्टोफिली, वहीं पे मिल जाएगा। हेलो मैम। हाँ, आंसर मैम क्या है? हाँ? ज़ूस्टेरा, ज़ूस्टेरा। यस, वेरी गुड, ज़ूस्टेरा। In Zostera, even Ceratophyllum is another example. अपने बुक में नहीं दिया होगा, and Ceratophyllum. These are hydrophilous plant. These are hydrophilous plant, water pollination, और उसमें exine is absent. और the pollen grains are needle shape. दोनों है needle shape pollen grain without exine. तो ये आपका सबका लिख के हो गया, तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देती हूँ। ये हो गया सबका लिख के? यस। सबका हो गया, बाकी बच्चों? Yes. तो लिखो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लास्ट वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट 8:20 हो गए, तो एक क्वेश्चन वो डिफिकल्ट है, उसको टाइम जाने वाला है। लिखो एक क्वेश्चन। Yes. Yes. चलो चलो, कहाँ गया मेरा? शायद ये आपको जल्दी से आ भी जाए। ऑप्शन लिखूं क्या? फर्स्ट ऑप्शन 256, सेकंड ऑप्शन सोचना पड़ता है, इसलिए मुझे ऑप्शन लेने को अच्छा नहीं लगता है। कैलकुलेट करके आपको थर्ड और फोर्थ, नहीं नहीं नहीं, आप ढूंढ लो, जाने दो, मैं नहीं बोलती, क्योंकि ऑप्शन लिख के ना, तो ये 256 के बदले सिंपल कर दूं क्या? 256 कैलकुलेशन के लिए ज्यादा होगा, तो 400 लिख देती हूँ। चलो 400 दिखता है ना? यस। ऑप्शन चाहिए तो लिख देती हूँ। 200, 400, 500, 600। थोड़ा सोचो, नहीं आएगा तो मैं आंसर बोल दूंगी, वैसे कुछ नहीं। आपको क्या सोचना है?
समझो सीड्स के बदले जाइगोट लिखा होगा तो आएगा क्या, देखो सीड के बदले जाइगोट लिखा है तो सोचो आएगा क्या आंसर, क्योंकि सीड नहीं तो जाइगोट कुछ भी लिखते हैं, एम्ब्रियो भी लिखते हैं, तो भी आंसर वही है। याद रखो कि कभी भी एग्जाम में जो नहीं आता है उसमें ऐसे ही कुछ आंसर नहीं डालने हैं, क्योंकि माइनस मार्क्स हो जाते। जो श्योर है वही आंसर लिखो, क्योंकि नहीं तो कभी कभी जितने मार्क्स मिलते हैं उससे ज्यादा माइनस होते हैं। हिंट दे दो, हिंट दे दो। सीड यानी जाइगोट समझो, तो Yes. वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ वन फीमेल गैमेट, बराबर। तो एक फीमेल गैमेट होने के लिए कितने बार मियोसिस होना चाहिए? मैम इसका 400 मियोसिस, 400 ही होगा। श्योर? यस। No is 500 है। क्योंकि क्या 500 क्या बोल दिया? Is 500 है। चलो अभी मैं इसके लिए सिंपल बोल देती हूँ, सबको आएगा फिर। हाँ, फॉर्मूला है उसके लिए, नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस zygotes or seeds is equal to number of zygotes or seeds whatever is given multiplied by 5/4। अभी तुरंत आ जाएगा आपको। अभी आंसर 500। बराबर है। देखो 5/4 क्यों लिखा है? सिंपल, पोलन ग्रेन देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस एंड विल गिव राइज टू 4 माइक्रोस्पोर, लेकिन एक माइक्रोस्पोर से एक मेल गैमेट बनता है, बराबर है ना? यस। यस। तो एक बार मियोसिस हो गया मेल गैमेट के लिए तो 4 गैमेट्स बनते हैं। हाँ, कैसे याद रखना है? एक बार मियोसिस हो गया तो 4 गैमेट्स मिलते हैं हम लोगों को, 4 मेल गैमेट्स। लेकिन फीमेल गैमेट में क्या है? फीमेल गैमेट में मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस गिव राइज टू 4 मेगास्पोर, उसमें से एक ही फंक्शनल है, और एक फंक्शनल जो है मेगास्पोर वो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है, एम्ब्रियो सेक फॉर्म करता है, उसमें एक ही फीमेल गैमेट है। तो एक फीमेल गैमेट के लिए एक बार मियोसिस होता है। तो अभी देखो 400 दिया है हम लोगों को, तो 400 मेल गैमेट्स के लिए 100 टाइम्स होगा मियोसिस, क्योंकि एक बार मियोसिस हो गया तो 4 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो 400 मेल गैमेट्स के लिए कितने बार होना चाहिए मियोसिस? 100 टाइम्स। लेकिन फीमेल गैमेट एक बार मियोसिस हो गया तो एक ही फीमेल गैमेट, तो 400 फीमेल गैमेट के लिए 400 टाइम्स होना चाहिए। तो 400 प्लस 100 टोटल इज 500, तो उसके बदले ये लिखा है फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 5/4। तो उसमें कुछ भी दिया, 256 दिया तो कितना आएगा? मैंने 256 लिखा था, लेकिन मैं ओरली नहीं कर पाती थी। वो 256 होगा तो कितना होगा? 256 जाइगोट मैंने पहले लिखा था ना, तो उसके लिए कितना आंसर आएगा? 400 के बदले मैंने यहाँ 250, क्या आपको दिखाई देता है? 320। Yes, 320. ये दिखाई देता है? Yes. यस। चाहिए तो लिख के ले लो, नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जाइगोट्स और सीड्स
is equal to number of zygotes or seeds multiplied by 5/4. तो मैंने 256 सब जो यहाँ पे लिख दिया, तो आंसर आएगा 256 multiplied by 5/4. कितना आता है? 320. 320. 320. 320 आता है. Yes. Yes. हाँ 320. वो मैं ओरल नहीं कर पा रही थी और मैंने लिखा भी नहीं था. मैं यहाँ लिखती तो आपको तुरंत आंसर समझ जाता था, इसलिए मैंने वो इजी करके 400 डाल दिया, क्योंकि मेरा मैथ्स तो बहुत वीक है. तो 400 तो मैं ओरली कर सकती थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चेंज करके 400 लिखा. तो ये आपको समझ में आ गया है. ये एक फॉर्मूला याद रखना है. हाँ, तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट संडे शायद मुझे फिर से लेक्चर होगा. उसके पहले आप वो जो मैसेज करना है, क्या करना है वो मुझे पता नहीं, जो कुछ करना है वो करके पीडीएफ मांग के ले लो. तो नेक्स्ट टाइम हम लिविंग वर्ड कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लिविंग वर्ड में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. 62 क्वेश्चंस है. एक जैसे कंसेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद ऐसे कुछ 22 और क्वेश्चंस है कुछ, और एक 4-5 है, मुझे वो नाम नहीं याद. पॉन्डर और कुछ तो लिखा है. कंसेप्ट बिल्डिंग 62 है. तो कुछ भी होने दो, हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे. लेकिन आपको अभी एक जिम्मेदारी कि आपको वो चैप्टर सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक से पढ़ के रखना है. मॉड्यूल में मॉड्यूल तो नहीं देंगे, हाँ पीडीएफ में जो आएगा वो पढ़ना है, और 11th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ना है. इतना काम करना है और कम प्रिपेयर्ड सो दैट वी कैन कंप्लीट द एंटायर चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो नेक्स्ट संडे, अभी आपकी जिम्मेदारी 8 दिन बाकी है, तो ये पढ़ के रखो. और सेकंडली, जिनको पीडीएफ मिला नहीं है वो क्या सर को मैसेज करना है, क्या जो कुछ करना है वो करो और पीडीएफ मांग के ले लो. ठीक है, क्योंकि आज तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर दिया. लेकिन कर दिया मीन्स मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन मुझे याद थे वो मैंने बोल दिए, क्योंकि मॉड्यूल तो नहीं है, अभी मेरे पास भी नहीं है पीडीएफ. तो मैंने जो बाय हार्ट, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सब चैप्टर के आते हैं, क्योंकि इतने साल पढ़ा रही हूँ. आई स्टार्टेड टीचिंग इन 1975. तो 75 से अभी कैलकुलेट करो कितने साल हो गए. मुझे लगता है 48 ईयर्स. 48 ईयर्स आई एम टीचिंग. तो मुझे सब कुछ बाय हार्ट है, क्वेश्चन विद आंसर. तो बोल दिए मैंने जो क्वेश्चंस में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन इतने तो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिए. तो अभी हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकेंगे. लेकिन ऐसे होना चाहिए कि मुझे लगना चाहिए अभी आपको सब कुछ आता है, अभी मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, ऐसे होना चाहिए. और सेकंडली, सिर्फ बायोलॉजी नहीं करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है. क्योंकि जो बच्चे सिर्फ बायोलॉजी करते हैं ना और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करते, उनको नहीं एडमिशन मिलता है. क्योंकि वो भी परफेक्ट चाहिए, कि मान कम से कम एक तो सब्जेक्ट सब कुछ आना चाहिए. अभी आपको जो बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री, तो उसमें से एक पूरा करो अच्छी तरह से, कि जो उसमें 100% मार्क्स लाना चाहिए. और थोड़ा तीसरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा कम आएगा तो भी चलेगा. तो फिजिक्स के प्रॉब्लम आपको अच्छे लगते होंगे, तो फिजिक्स के प्रॉब्लम इतना सॉल्व करो कि कुछ भी प्रॉब्लम आने तो आप सॉल्व कर पाओ. तो केमिस्ट्री करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो. सिर्फ बायोलॉजी करके कुछ भी होने वाला नहीं है, वो मैं बोल देती हूँ. और जो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है वो आने वाला नहीं है, वो भी याद रखो. क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में डालते हैं, हाँ अपने क्लास के क्वेश्चन पेपर में सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन भी डालते हैं. क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम टीचर्स नहीं सिलेक्ट करते, वो शायद कंप्यूटर से सिलेक्ट करके लेते हैं, ऐसे कुछ है, पता नहीं मुझे. लेकिन कभी कभी सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आता है. ऐसे आएगा ना तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस है, सिर्फ सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं. नहीं तो अभी जो मैंने बोला ना एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन, वैसे आते हैं. तो अभी मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ. नेक्स्ट संडे लिविंग वर्ड आपकी जिम्मेदारी, विद पीडीएफ यू शुड बी हियर. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर. पढ़ के रखोगे ना चैप्टर? Yes, ma'am. Yes. वेरी गुड. चलो, क्योंकि आप पढ़ के रखोगे, तैयार होगे ना, तो फटाफट हो जाएगा. मैं और भी कुछ क्वेश्चंस दे सकती हूँ आपको. मुझे बहुत सारी चीज आपको देना है. साइंटिस्ट का नाम विद डिस्कवरी, एक लिस्ट बड़ी बना के देना है, बहुत सारी चीज है. तो हम लोग करेंगे वो धीरे धीरे. सो आई विल स्टॉप हियर. तो आपको अच्छा लगा लेक्चर? Yes. Ma'am. थैंक यू. चलो.